بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایران میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا خسرو شاہ۔ یہ بادشاہ بہت منصف مزاج تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے راج میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ بادشاہ خسرو شاہ اپنی رعایا کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ بعض اوقات رات کو بھیس بدل کر نکلتا اور اپنی رعایا کو قریب سے دیکھتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ رات کو شہر میں گھوم رہا تھا کہ اس کو ایک بہت ٹوٹے پھوٹے مکان سے لڑکیوں کے بات کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کی دراز میں سے جھانک کر جو دیکھا تو اسے 3 نوجوان لڑکیاں آپس میں بات چیت کرتی ہوئی نظر آئی۔ یہ تینوں بہنیں معلوم ہوتی تھی اور سب کی سب بہت خوبصورت تھیں، لیکن ان میں سے سب سے چھوٹی جو تھی اس کا تو کہنا ہی کیا، وہ چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ بڑی بہن کہہ رہی تھی، آؤ آج ہم سب اپنی اپنی خواہش بیان کریں کہ کون کیا ہونا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی خواہش بیان کرنا چاہتی ہوں۔ لو سنو، تم سب جانتی ہو کہ مجھے مزیدار چیزوں کا شوق ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر روز ایک سے ایک اچھی مٹھائی کھانے کو ملے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بادشاہ کے حلوائی سے زیادہ اچھی مٹھائی کون کھلا سکتا ہے۔ بس میں اتنا جانتی ہوں کہ تم دونوں تو مجھے شاہی حلوائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر جل مرو گی۔ میرے گالوں میں چمک پیدا ہو جائے گی اور میں آج سے بہت زیادہ خوبصورت لگوں گی۔ اس بات کو سن کر منجلی بہن بولی، بہن میری اتنی بڑی آرزو تو نہیں، ہاں اگر بادشاہ کا باورچی مل جائے تو بس پھر مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ میں تو بس روز شاہی کھانا کھایا کروں گی، ایک سے ایک مزیدار گوشت۔ جب بادشاہ کے یہاں دعوت ہوتی ہے اور بادشاہ کے نوکر سینیوں میں طرح طرح کے کھانے لے جاتے ہیں تو بس گویا میرے منہ سے رال ٹپکنے لگتی ہے۔ اس لیے اگر بادشاہ کے باورچی سے میری شادی ہو جائے تو پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ البتہ اگر میرا شوہر مجھے کچھ دے گا تو میں تم لوگوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ بھیج دوں گی۔ اب دونوں بہنیں سب سے چھوٹی بہن سے بولی، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا آرزو ہے۔ ہم نے تو اپنی اپنی بتا دی، تم کیوں شرما رہی ہو؟ دیکھو جب ہماری شادی ہو جائے گی تو ہم کسی شاہی نوکر سے تمہاری بھی شادی کرا دیں گے، پھر تم بھی آرام سے رہنا۔ سب سے چھوٹی نے جو سنا تو سچ مچ وہ شرما گئی، اور پھر جب بولی تو جیسے جھرنے میں سے پانی گر رہا ہو۔ میری پیاری بہنوں، اتنا کہہ کر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ دونوں بہنیں خوب ہنسی اور بولی، نہیں نہیں شرماؤ مت، اپنی آرزو بیان کرو۔ یہ سن کر سب سے چھوٹی بہن شرماتے ہوئے بولی، میری خواہش ہے کہ میں بادشاہ سے شادی کروں، پھر میرے بچے بادشاہ بنیں گے۔ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت کہ لوگ دور سے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، اور میری لڑکی اتنی حسین ہوگی کہ چاند اسے دیکھ کر شرمائے گا۔ اس کے بال سونے کی طرح چمکدار ہوں گے، اس کے ماتھے کا پسینہ موتی بن کر ٹپکے گا۔ جب وہ ہنسے گی تو سونے اور چاندی کی جھنکار سنائی دے گی، اور جب وہ مسکرائے گی تو باغوں میں کلیاں کھل جائیں گی۔ بس میں تم سے کیا بتاؤں کہ کتنی خوبصورت ہوگی میری شہزادی۔ خسرو شاہ نے سنا اور ذرا سی دیر کے بعد خاموشی سے اپنے محل واپس آ گیا۔ اب بادشاہ کے جی میں یہ بات آئی کہ کس طرح ان تینوں کی آرزو پوری ہو۔ چنانچہ اگلے دن اس نے وزیر سے کہہ کر تینوں بہنوں کو بلایا۔ جب یہ بہنیں دربار میں آئیں تو مارے ڈر کے کانپ رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اے لڑکیوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آج تمہاری قسمت جاگ رہی ہے، تمہاری دلی آرزو کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور مجھے تم تینوں کی آرزوؤں کے بارے میں معلوم ہے، کیونکہ بادشاہوں سے اپنی رعایا کی کوئی بات چھپی نہیں ہوتی۔ ہاں تو سنو، تم میں سے جو سب سے بڑی ہے اس کی شادی میں اپنے حلوائی سے کروں گا تاکہ اس کو بہترین مٹھائی ملے، ہے نا یہی تمہاری آرزو؟ بادشاہ نے بڑی لڑکی سے پوچھا، میں ٹھیک کہتا ہوں نا؟ بڑی لڑکی نے اپنا سر ہلایا۔ تب اس نے منجلی لڑکی سے کہا، اور تمہاری شادی ہمارے باورچی سے ہوگی، اور تم کو وہ سب کھانے ملیں گے جو میرے دسترخوان پر آتے ہیں، یہی ہے نا تمہاری آرزو؟ منجلی لڑکی نے بھی سر ہلا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ تیسری بہن کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم کو میں اپنی ملکہ بناؤں گا، خوش ہونا، یہی تو ہے تمہاری آرزو؟ تیسری بہن نے شرما کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تینوں بہنوں کی شادی ان کی آرزو کے مطابق کر دی، لیکن تیسری بہن کی شادی بڑی شان و شوکت سے ہوئی اور وہ بڑی عزت کے ساتھ محل میں رہنے لگی۔ دونوں بڑی بہنیں اپنی چھوٹی بہن سے جلنے لگی جو ملکہ تھی۔ وہ اس فکر میں لگ گئیں کہ کسی طرح اس کو نیچا دیکھا، لیکن انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن سے ملتی تو اس طرح باتیں کرتی جیسے اس سے بڑی محبت کرتی ہوں، ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی۔ وہ بیچاری یہی سمجھتی کہ یہ دونوں بہنیں اس سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن ان دونوں کو دل ہی دل میں اس بات پر غصہ تھا، وہ تو بادشاہ کے نوکروں کی بیویاں ہیں اور یہ خود ملکہ بن گئی ہے۔
बस वो तो इसी ख्याल से जलती रहती। इस तरह बहुत दिन गुजर गए, लेकिन कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जब मलिका के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उस वक्त दोनों बहनें वहाँ मौजूद थी। उन्होंने जो इतना खूबसूरत बच्चा देखा तो और जल गई। उन्होंने सोचा कि अब इस बहन से बदला लेने का वक्त आ गया। बस फिर क्या था, उनको एक तरकीब सूझ गई। उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते के बिल्ले को लाकर रख दिया और बच्चे को एक टोकरी में रखकर महल के पास वाली नहर में बहा दिया। जब मलिका ने कुत्ते के बिल्ले को देखा तो उसका दिल धक से रह गया और बड़ी बहन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बहन परेशान मत हो, खुदा को यही मंजूर था, क्या किया जाए। इधर जब बच्चे की टोकरी बहती हुई चली तो बादशाह के माली ने उसे देख लिया और उसे पानी से निकाल लिया। उसने जो टोकरी खोल कर देखा तो उसमें नन्हा मुन्ना बच्चा पाया। वो अपना अंगूठा चूस रहा था। वहां बाग में सिर्फ माली और उसकी बीवी रहते थे। माली ने जो इस बच्चे को देखा तो मारे खुशी के फोला न समाया। वो टोकरी उठाकर दौड़ता हुआ सीधा अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला, देखो अल्लाह ने हमें कितना अच्छा बच्चा भेजा है। ये नहर में बहता हुआ आया था, मैंने उसे उठा लिया, आज से ये हमारा बच्चा है। खुदा ने बरसों के बाद हमारी दुआएं सुनी। इस तरह यह बच्चा माली के यहाँ बड़े मजे में पलता रहा। अगले साल फिर मलिका के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। इस बार दोनों बहनों ने जलकर वही हरकत की। उन्होंने इस तरह इस बच्चे को भी टोकरी में रखकर नहर में बहा दिया और मलिका के पास एक बिल्ली का बच्चा मारकर डाल दिया और सारे महल में मशहूर कर दिया कि मलिका के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। मलिका ये सुनकर बहुत रोई और बादशाह का सर मारे शर्म के झुक गया। उसको गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन बादशाह इतना नेक था कि उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और चुप हो गया। इधर ये बच्चा फिर नहर में बहता हुआ वहीं पहुंचा जहां माली रहता था। माली ने जो टोकरी देखी तो उसने दौड़कर निकाली और इस तरह ये बच्चा भी बच गया और माली ने उसे भी पहले बच्चे के भाई की हैसियत से पाला। एक साल के बाद फिर मलिका के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। ये बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मलिका की दोनों बहनें इतनी खूबसूरत बच्ची को देखकर और जल गईं। वो चाहती थी कि किस तरह बादशाह नाराज होकर मलिका को सजा दे, इसलिए उन्होंने फिर वही तरकीब की। एक टोकरी में रखकर उसे भी नहर में बहा दिया। ये भी बहती हुई उसी तरह माली के हाथ लगी जैसे उसके दो भाई। माली ने उन बच्चों के साथ उसको भी पाला। इस बार मलिका की बहनों ने महल में मशहूर कर दिया कि मलिका के यहाँ चूहिया पैदा हुई है। बादशाह बड़ा नेक था, फिर भी इंसान था। उसको इतना गुस्सा आया कि जब्त न कर सका। ये सोचने लगा कि मेरी बीवी इंसान नहीं है, कोई दरिंदा है जिसका बच्चा इंसान नहीं जानवर होता है। उसने हुक्म दे दिया कि मलिका को जान से मार दिया जाए। जब मलिका को सजा देने के लिए बाहर लाए तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ज़ारों कतार रो रही थी। बादशाह को उस पर रहम आ गया। उसने कहा, अच्छा इसे ले जाकर महल के किसी कमरे में बंद कर दो। चुनाचे मलिका को महल के अंदर सारी जिंदगी के लिए कैद कर दिया गया। अब मलिका की दोनों बहनें बहुत खुश हुईं। वो बादशाह के हलवाई और बावर्ची के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। अब उनको इस बात का गम नहीं था कि उनकी बहन मलिका है। वो महज हलवाई और बावर्ची की बीवियां हैं। इधर बाग में तीनों बच्चे हंसी खुशी पल रहे थे। जो कोई उन्हें देखता हैरत में रह जाता, ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं माली के। माली ने बड़े लड़के का नाम फरीद रखा, दूसरे का फिरोज और लड़की का नाम फिरोजा। फिरोजा तो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो मुस्कुराती ऐसा लगता कि जैसे आसमान पर तारे चमक रहे हों और जमीन पर कलियां खिल उठी हों। माली और उसकी बीवी इतने खूबसूरत खूबसूरत बच्चों को देख देख कर बहुत खुश होते। फिरोजा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अक्लमंद भी थी। उसकी अकल को देखकर तो उसके दोनों भाई दंग रह जाते। जब तीनों बहन भाई बड़े हुए तो उन्होंने तीर अंदाजी सीखी। कभी कभी फरीद और फिरोज अपनी बहन को भी अपने साथ शिकार पर ले जाते। उनका निशाना बहुत अच्छा था। जो कोई उनकी तरफ देखता उसकी आंखें चिकाचूंद हो जाती। अब माली और उसकी बीवी बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि माली की बीवी बहुत बीमार हुई। एक दिन वो मर गई। माली और तीनों बच्चों को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसके बगैर सारा बाग सूना हो गया। उनके लिए उस झोपड़ी में रहना नामुमकिन हो गया, इसलिए कि उन्हें वहां की हर चीज को देखकर बूढ़ी मालन याद आती। आकर माली बादशाह के पास गया और उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि जहां पना, मैंने अपनी तमाम उम्र आप ही खिदमत की, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी बीवी जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी वो भी खत्म हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे दें ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी खुदा की याद में गुजारूं। बादशाह ने माली को इजाज़त दे दी और उसके लिए शहर में एक अच्छा मकान बनवा दिया और इनाम के तौर पर बहुत सारा रुपया भी दिया ताकि उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। माली ने अपने नए मकान के पास एक बड़ा खूबसूरत बाग लगाया और तीनों बच्चों के साथ मज़े में रहने लगा। ये तीनों बच्चे भी जवान हो गए थे और माली को उनकी तरफ से इत्मीनान हो गया था, उसके बगैर उन्हें कोई तकलीफ ना होगी। आखिर एक रोज़ माली बहुत बीमार हुआ और एक दिन वो भी मर गया।
माली उन तीनों बच्चों से बाप की सी मोहब्बत करता था और वो तो यही समझते थे कि यही उनका बाप है। वो उसकी मौत पर बहुत रोए, बहुत रोए। अब ये तीनों बहन भाई रह गए। फरीद और फिरोज अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे और उसका हर तरह ख्याल रखते थे। उनके मरने के बाद अब ये बात किसी को भी न मालूम थी कि तीनों कहाँ से आए। गोया उस बूढ़े के साथ ये रात मनो मिट्टी के नीचे दफन हो गया। ये तीनों बहन भाई अपनी जिंदगी मिलजुल कर गुजारते रहे। फरीद और फिरोज तो शिकार करने चले जाते और फिरोजा अकेली घर में रहती और अपने बाग की देखभाल करती। एक दिन वो जब घर में अकेली थी तो वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। फिरोजा ने उसे अपने बाग दिखाया, उसकी खूब खातिर मुदारत की, उसे खूब मजे मजे की चीज़ें खिलाई। बुढ़िया खा पी कर बहुत खुश हुई। फिरोजा ने फिर उसे ले जाकर एक बड़े खूबसूरत पेड़ के नीचे बिठाया और उससे पूछा, बड़ी भी, तुम तो जगह जगह घूमती फिरती हो, तुमने तो बहुत से और तरह तरह के बाग देखे होंगे, अब ये बताओ कि तुमको हमारा बाग कैसा लगा। बुढ़िया थोड़ी देर तो खामोश रही, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर बोली, मेरी प्यारी बेटी, मेरी सारी जिंदगी दुनिया की सैर करते गुजरी है। मैं एक जगह से दूसरी जगह घूमती फिरती हूँ, किसी जगह कभी नहीं ठहरती, लेकिन तुम्हारे बाग को देखकर मेरा जी बहुत खुश हुआ। फिर तुम्हारी सूरत शक्ल की लड़की तो मैंने देखी ही नहीं, और मेरा जी चाहता है कि जिस बाग में तुम जैसी लड़की हो उसमें अगर वो 3 चीज़ें और होती जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं है तो फिर कितना अच्छा होता। फिरोजा सोचने लगी कि वो आखिर कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनकी कमी है और जो ऐसी अजीब व गरीब हैं। उसने बुढ़िया से पूछा, बड़ी भी, वो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं, मुझे बताओ, मैं अपने भाइयों से कहकर उन्हें हासिल करूंगी। मैं ज़रूर बताऊंगी, तुमने जिस तरह मेरी खातिर मुदारत की उसका मेरे दिल पर बड़ा असर है। यह कहकर बुढ़िया ने कहा, एक तो ऐसी चिड़िया है कि जब वो गाती है तो सारी चिड़ियाएं उसके सामने जमा हो जाती हैं और सब मिलकर गाती हैं, उसे बुलबुल हजार दास्तां कहते हैं। दूसरी चीज़ गाने वाला पेड़ है, जब हवा चलती है तो उस पेड़ की एक एक पत्ती से बड़ी अच्छी आवाज़ निकलती है, जैसे बहुत से साथ एक साथ बजने लगे हों। और तीसरी चीज़ है सुनहरा पानी, जैसे सोने के मोती टपक टपक कर गिर रहे हों। बुढ़िया ने ये तीनों अजीब व गरीब चीज़ें बताने के बाद फिर कहा, बेटी, अगर तुम्हारे बाग में ये तीनों चीज़ें आ जाएं तो बस तुम्हारे बाग में किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी ना रहे। शहजादी ने कहा, बड़ी भी, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये तीनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी। बुढ़िया ने कहा, ये तीनों वाकई तुम्हारे बाग के लायक हैं, काश तुम इनको हासिल कर सको। इसके लिए तुमको हिंदुस्तान का सफ़र करना होगा। अगर कोई जाए तो उससे कहना कि मशरकी सड़क पर रवाना हो जाए, चलता रहे 20 रोज तक सफ़र करे। उसके बाद जो आदमी सबसे पहले नजर आए तो उससे कहे, अरे भाई, बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पौधा और सुनहरा पानी कहाँ है। अब वो अजनबी जो रास्ता बताए उसी पर रवाना हो जाए, खुदा करे कि तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया मुंह ही मुंह में कुछ कहती हुई चली गई, जैसे फिरोजा को दुआएं दे रही हो। जब वो बुढ़िया चली गई तो फिरोजा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। जरा सी देर बाद वो चौंकी। उस जगह का पता बुढ़िया से और पूछ लूं, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो बुढ़िया उसकी नज़र से ओझल हो चुकी थी। इसलिए उसने सोचा कि बुढ़िया ने जो कुछ बताया है इसी को याद कर लिया जाए तो अच्छा है। इसलिए वो उसे याद करने की कोशिश करने लगी। उसका दिल चाहने लगा कि उन 3 अजीब व गरीब चीज़ों को देखे, बल्कि किस तरह उनको हासिल करे। अब उसको अपना बाग जरा भी अच्छा नहीं लगा। जरा सी देर बाद वो बाग के रोशों पर चलते चलते रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू टपके वो मोतियों की लकीर बन गए। जरा सी देर के बाद फिरोज और फरीद शिकार से वापस आ गए। वो अपनी बहन को ढूंढने बाग में गए। क्या देखते हैं कि रोश पर मोतियों की कतार थी और उन्होंने एक दूसरे से कहा, आज कोई बात है जो हमारी बहन रो रही है। ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने उसे उदास कर दिया। वो उसी रास्ते पर जहां मोती पड़े थे चलते चलते उन्हें एक जगह फिरोजा नजर आई। वो दौड़कर अपनी बहन से लिपट गए। प्यारी बहन, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा फूल सा चेहरा मुरझा गया है और तुमने बाग में जगह जगह आंसुओं के मोती बिखेर दिए हैं। फिरोजा ने उन्हें देखकर सर उठाया और अपने भाइयों को परेशान देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और उसके होंठों पर गुलाब का एक छोटा सा फूल खिल गया। वो बोली, मेरे प्यारे भाई, और फिर खामोश हो गई। उसे खुद अपनी ख्वाहिश पर शर्म आई। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरी बहन, हमें बताओ, हम पर भरोसा करो, हम तो तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ कर ला सकते हैं। फिरोजा के लिए अब बात को और भी छुपाना मुश्किल हो गया। बोली, मुझे अब अपना ये बाग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ ना तो बुलबुल हजार दास्तां है, न गाने वाला पेड़ और ना सुनहरा पानी। उसके बाद फिरोजा ने अपने भाइयों को बुढ़िया के आने और उसकी खातिर मुदारात करने और फिर उसकी जुबानी इन 3 चीज़ों के बारे में मालूम होने का हाल सुनाया। दोनों भाइयों को सुनकर हैरत हुई। फिर बोले, बहन, तुम परेशान मत हो, ऐसी कौन सी चीज़ है
जो हम तुम्हारे लिए नहीं ला सकते। अगर इसके लिए हमें कोकाफ भी जाना पड़े तो हम वहां भी चले जाएंगे। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अपने आंसू पोंछो और हमें यह बताओ कि बुढ़िया ने उसका कोई पता भी बताया है। अब फिरोजा कुछ परेशान हो गई, लेकिन फिर उसने बुढ़िया के बताए हुए पते का जिक्र किया। दोनों भाइयों ने एक आवाज से कहा, प्यारी बहन तुम घर में जाओ, हम अभी उस तरफ जाते हैं और तुम्हारे लिए ये तीनों चीजें लेकर आते हैं। फिरोजा ने कहा, मेरे भाई मत जाओ, मैं उनके बगैर भी जी लूंगी, मगर तुम लोग चले गए तो मैं क्या करूंगी। फरीद ने कहा, बहन तुम फिक्र मत करो, मैं अकेला जाऊंगा, मेरा घोड़ा तैयार है, फिरोज तुम्हारे पास रहेगा। यह कहकर वो घोड़े पर सवार हो गया। फिरोजा ने जाकर घोड़े की बाग पकड़ ली। बस उतर जाओ, इस सफर का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि यह सफर खतरनाक है। मुझे न बुलबुल हजार दास्तां की जरूरत है और न गाने वाले पेड़ और न सुनहरे पानी की। फरीद ने उसे प्यार किया और कहा, मेरी प्यारी बहन तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द आऊंगा, खुदा मेरी हिफाजत करेगा। मैं तुमको एक चाकू देता हूँ, इसका दस्ता कैसे बना है। इसके दस्ते पर जो मोती हैं ये दरअसल वो आंसू हैं जो तुम्हारी आंखों से पहली बार टपके थे। इस चाकू का कमाल ये है कि जब तक ये साफ सुथरा है समझो कि मैं खैरियत से हूँ, अलबत्ता जब इस पर जंग आ जाए तो समझो कि मेरी जान खतरे में है, मैं कैद हो गया हूँ। लेकिन अगर खून के कतरे आ जाएं तो जान लेना कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। अगर ऐसी बात हो जाए तो तुम दोनों बस खुदा से मेरे लिए दुआ करना और सब्र से काम लेना। उसने ये कहकर वो चाकू फिरोजा को दिया और बुढ़िया के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। फरीद 20 दिन और 20 रातों तक चलता रहा। रास्ते में सिवाय जंगल के कोई चीज नजर न आई। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ थे। फरीद को एक पहाड़ नजर आया, वहीं पहाड़ के नीचे एक पेड़ नजर आया और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। बूढ़े के सर और दाढ़ी के बाल इतने थे कि उसका मुंह भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी भीमें लंबी और बाल सन जैसे सफेद हो रहे थे। उसके बाजू और पैर सूख कर कांटा हो रहे थे और उसके नाखून बहुत ही लंबे हो गए थे। उसको देखकर ख्याल होता कि यह आदमी सारी दुनिया को छोड़कर बरसों से यहाँ बैठा है। फरीद ने कहा, बाबा हमारा सलाम कबूल करो। बूढ़े ने सर उठाया, लेकिन उसकी भीमें आंखों को छुपाए हुए थी। उसने देखने की कोशिश की, फिर उसने मुंह खोलना चाहा, लेकिन मूंछों के बाल सामने आ गए। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज बालों में उलझ कर रह गई। फरीद की कुछ समझ में न आया। फरीद ने सोचा क्यों न इस बूढ़े की मदद की जाए और फिर उससे रास्ता पूछा जाए। ये सोचकर फरीद ने अपनी जेब से कैंची निकाली और बोला, बाबा मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारे बाल काट दूं, इसलिए कि तुमको खुदा की याद से फुर्सत ही नहीं कि अपना ख्याल करो। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। फरीद ने बढ़कर जल्दी जल्दी बूढ़े के बाल काटे। अब बूढ़े का चेहरा नजर आने लगा। फिर उसके नाखून काटे और बोला, अब आप बिल्कुल तरोताजा हो गए। बूढ़े ने फरीद को गौर से देखा। उसके चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि जैसे वो बहुत खुश है। फिर उसने फरीद से कहा, बेटा खुदा तुमको सदा खुश रखे कि तुमने मुझ जैसे बूढ़े की खिदमत की। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुम इस वीराने में क्यों और किस काम से आए हो। फरीद ने कहा, बाबा मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे बुलबुल हजार दास्तां, गाते हुए पेड़ और सुनहरे पानी की तलाश है। क्या तुम मुझे इनका पता बता सकते हो। बूढ़ा, जिसकी उंगलियां तस्बीह के दानों पर चल रही थी, एकदम से घबरा गया। उसने हाथ रोक कर फरीद की तरफ देखा। फरीद ने कहा, बाबा तुम एकदम से खामोश क्यों हो गए, क्या तुमको उसका पता मालूम नहीं। बूढ़े ने कहा, बेटा मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन तुमने मेरे साथ जो नेकी की है उसके बदले में तुमको इतने खतरनाक रास्ते पर नहीं जाना देना चाहता। बेहतर है कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते पर पलट जाओ। तुम्हारे जैसे कितने नौजवान इधर उन चीजों की तलाश में गए, लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आया। फरीद ने कहा, बाबा तुम उसकी फिक्र मत करो, खुदा ने मुझे अकल दी है और ताकत भी, बस तुम तो मुझे रास्ता बता दो। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जो दुश्मन दिखाई ना दे उसका मुकाबला कैसे कर सकते हो, और फिर जब उनकी तादाद 1-2 नहीं हजारों है। फरीद ने कहा, बाबा मैं दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता, अगर मुझे मरना है तो कहीं भी मर सकता हूँ, बस डरता खुदा की जात से हूँ, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। जब बूढ़े ने देखा कि फरीद अपने फैसले पर अटल है और कोई बात नहीं मानता, तो फिर उसने अपनी झोली में हाथ डाला। उसमें से एक फौलाद की गेंद निकली। उसने ये गेंद फरीद को देकर कहा, तुम अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और इस गेंद को सामने फेंक दो। ये गेंद अपने आप चलेगी। जिस जिस रास्ते पर यह गेंद चले तुम अपने घोड़े को उसी रास्ते पर ले चलो। जहां ये रुक जाए तुम भी रुक जाना। उसके बाद अपने घोड़े की लगाम को इस गेंद से बांध देना। इससे बांधने का असर यह होगा कि तुम्हारा घोड़ा अपनी जगह से टस से मस न होगा। उसके बाद तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाना।
جس کی چوٹی یہاں سے دکھائی دے رہی ہے۔ تم کو دونوں طرف کالے کالے پتھر دکھائی دیں گے۔ اب تم کو طرح طرح کی آوازیں سنائی دے گی۔ یہ آوازیں کسی جھرنے کی نہیں ہیں، یہ آوازیں ہواؤں کی بھی نہیں ہیں، یہ آوازیں ہیں ان کی جو دکھائی نہیں دیتے اور اس پہاڑ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ برا بھلا کہتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، ان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اب اگر تم نے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، کالے پتھر کے، جیسے کہ وہ پتھر ہیں۔ یہ لوگ تمہاری طرح ان تینوں چیزوں کی آتو لے کر وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، مڑ کر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ اگر تم سیدھے آگے پہنچ گئے تو گویا تم نے اپنی منزل پا لی۔ تم کو سامنے ایک پنجرا دکھائی دے گا جس میں ایک چڑیا بند ہوگی۔ یہی بلبل ہزار داستاں ہے۔ تم اس سے پوچھو گے تو یہ بتا دے گی کہ گاتا ہوا پیڑ اور سنہرا پانی کہاں ہے۔ اب جاؤ، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ فرید گیند لے کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس نے گیند سامنے راستے پر پھینکی، گیند چلنے لگی۔ یہ گیند عجیب و غریب راستوں سے گزر رہی تھی، لیکن فرید کا گھوڑا بہت ہی تیز تھا۔ اس نے بھی راستے کو پھرتی سے پار کیا، یہاں تک کہ وہ گیند پہاڑ کے بالکل نیچے آ کر رک گئی۔ فرید نے اتر کر گھوڑے کی لگام گیند سے باندھ دی۔ گیند سے لگام کو باندھنا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں اپنی جگہ پر جم گئے، جیسے کسی نے کیل سے جڑ دیا ہو۔ اب فرید پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اسے کوئی آواز سنائی نہیں دی، البتہ اسے اپنے دائیں بائیں کالے کالے پتھر نظر آئے جن کے بارے میں بوڑھے نے بتایا تھا۔ پھر اچانک چٹانوں میں ہر طرف سے آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں بڑھتے بڑھتے بڑی بھیانک ہو گئی۔ ایسی خوفناک آوازیں اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ایک آواز آئی، کیا کام ہے، کیا کام ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ کوئی آواز آتی، گرا دو، گرا دو، جان سے مار ڈالو اس دل کو۔ بعد آوازیں رونے کی تھی، بعد ہنسنے کی تھی۔ فرید بڑی بہادری سے چڑھتا چلا گیا، لیکن ذرا سی دیر میں یہ آوازیں اور زیادہ بھیانک اور خوفناک ہو گئیں۔ کبھی تو ایسا لگتا جیسے یہ آوازیں بہت دور سے آ رہی ہیں، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے بہت پاس سے آ رہی ہیں۔ اب تو فرید کو ان آوازوں سے ڈر لگنے لگا، وہ کانپنے لگا۔ وہ بوڑھے کی نصیحت کو بالکل ہی بھول گیا۔ ایک مرتبہ اس نے مڑ کر دیکھا، مڑ کر دیکھنا تھا کہ وہ وہیں کا وہیں جم کر رہ گیا، اور پھر اوروں کی طرح پتھر کا ہو گیا۔ جیسے ہی فرید کا جسم پتھر کا ہوا، اس کا گھوڑا بھی پتھر کا ہو گیا، اور جب گھوڑا پتھر کا ہوا تو پھر فولاد کی گیند لڑکتی ہوئی واپس بوڑھے کے پاس چلی گئی۔ جب فیروزہ نے اپنا چاقو نکال کر جو دیکھا تو اس میں زنگ لگا ہوا تھا۔ فیروزہ اس کو دیکھ کر گھبرا گئی، چاروں قطار رونے لگی۔ ہائے میرا بھائی، میں نے تم کو کیوں جانے دیا، میں نے تم کو روکا کیوں نہیں؟ ہائے میرا بھیا، میری وجہ سے تمہاری جان خطرے میں پڑ گئی۔ اس کے بھائی فیروز نے جو یہ دیکھا کہ اس کے بھائی کی جان خطرے میں ہے تو وہ بھی رونے لگا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور فیروزہ سے کہا، میری پیاری بہن، پریشان مت ہو، میں بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤں گا، میں اسے مشکل سے نکالوں گا اور تمہارے لیے وہ تینوں چیزیں بھی لاؤں گا۔ یہ سن کر فیروزہ اور پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، میرے بھائی، اب تم ہی میرا سہارا ہو، تم بھی چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ میں اکیلے کیسے زندہ رہوں گی؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن فیروزہ کے روکنے کے باوجود فیروز چلا گیا۔ البتہ اس نے جانے سے پہلے اسے موتیوں کا ہار دیا۔ یہ ہار ان موتیوں سے بنا تھا جب فیروزہ بچپن میں دوسری بار روئی تھی۔ اس کے آنسو موتی بن گئے تھے۔ فیروز نے جاتے ہوئے اسے یہ ہار دے کر کہا، اگر اس ہار کے موتی ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو سمجھ لینا کہ میرا حال بھی اپنے بھائی جیسا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ 20ویں روز اسے بھی وہی بوڑھا ملا۔ بوڑھے سے جب فیروز نے اپنی بات کہی تو اس نے روکا اور کہا، بیٹا، اپنے گھر واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو تمہارے بھائی کا ہوا۔ ابھی تک وہاں کا گیا ہوا کوئی بھی واپس نہیں ہوا۔ لیکن فیروز نہیں مانا، وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ آخر بوڑھے نے اپنے تھیلے میں سے گیند نکال کر دی، اور یہ گیند آگے آگے چلتی رہی اور پیچھے پیچھے فیروز کا گھوڑا۔ آخر پہاڑ کے بالکل نیچے جا کر یہ گیند رک گئی۔ فیروز نے اپنا گھوڑا گیند سے باندھا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ذرا سی دیر میں آوازیں آنی شروع ہوئیں، وہی بھیانک آوازیں۔ یہ آوازیں اسے ڈرا دھمکا رہی تھیں۔ وہ بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، ہر قدم کے ساتھ آوازیں بھی خوفناک ہوتی چلی گئی۔ لیکن اچانک اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا بھائی اس کو آواز دے رہا ہے، میرے بھائی، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جیسے فیروز نے فرید کی آواز سنی، اس نے مڑ کر دیکھا۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، سارا جسم پتھر کا ہو گیا۔ یہاں فیروزہ کا یہ حال تھا کہ ہر وقت وہ اس ہار کو دیکھتی رہی۔ 21ویں دن اس ہار کے سب موتی ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی اور پھر زور سے چیخی، ہائے میرا بھائی، ہائے میں نے اپنی بے وقوفی سے اپنے بھائیوں کو کھویا۔ جب فیروزہ کافی رود ہو چکی تو اس نے سوچا کہ میرے بھائی مصیبت میں پھنسے ہیں،
मुझे खुद उनको मुसीबत से निकालना चाहिए। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी मर्दाना कपड़े पहने, मर्दाना भेष बदला और घोड़े पर बैठकर सीधी उसी रास्ते पर रवाना हो गई। 20 रोज बाद फिरोजा उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां वो बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने जाते ही कहा, बाबा क्या तुमने 2 खूबसूरत नौजवानों को इस रास्ते पर जाते देखा है जो बुलबुल हजार दास्तां गाते हुए पेड़ और सुनहरे पानी की तलाश में थे? हाँ बेटी फिरोजा, वो उसी रास्ते पर गए हैं। मेरे रोकने के बावजूद नहीं माने और उनके साथ भी वही हुआ जो उनसे पहले औरों के साथ हुआ था, वो भी पत्थर हो गए। बूढ़े की जुबान से अपना नाम सुनकर फिरोजा हैरत में रह गई, लेकिन फिर बूढ़े ने कहा, जिसने तुमसे इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया वो सच कहते हैं। वाकई उनमें यही खूबियाँ हैं, लेकिन बताने वाले ने तुमको इस खतरे के बारे में कुछ नहीं बताया। उनको हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। उनकी हिफाजत वो ताकतें कर रही हैं जो दिखाई नहीं देती। इंसान के लिए उन पर फतह पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। फिरोजा ने कहा, साईं बाबा, मैं अपने भाइयों के लिए बेचैन हूँ। मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरे सब कुछ वही है। तुम मुझे रास्ता बता दो, ये मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। एक बहन की बात मान लो बाबा। बूढ़े ने कहा, ए शहजादी फिरोजा, लो ये गेंद है, ये तुमको रास्ता बताएगी और तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन तुम अपने भाइयों को उस वक्त तक नहीं छोड़ा सकती जब तक कि इन तीनों चीज़ों पर कब्जा न कर लो जिनके लिए तुम्हारे भाई गए थे। ए शहजादी, मैं तुझे दुआ देता हूँ इसलिए कि तुम अपने भाइयों की मोहब्बत में जा रही हो। खुदा तेरी मदद करे। यह कहकर बूढ़े ने वही गेंद फिरोजा के हवाले कर दी और उसके बाद कुछ रुई जेब से निकाली और उससे कहा, बेटी अपना सर झुकाना। फिरोजा ने सर झुकाया। बूढ़े ने उसके दोनों कानों में खूब अच्छी तरह रुई ठोंस दी और कहा, बेटी फिरोजा, जाओ पहाड़ पर चढ़ जाओ। अब कोई आवाज़ तुम्हारे कान में नहीं आएगी, न मोहब्बत की और न नफरत की। फिरोजा ने गेंद फेंक दी। गेंद उसी तरह पहाड़ के नीचे तक पहुंची। फिरोजा भी घोड़े पर सवार उसके पीछे पीछे वहां आ गई। जैसे ही गेंद रुकी, फिरोजा ने घोड़े को गेंद से बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगी। जरा सी देर में उन्हीं आवाज़ों ने फिरोजा का पीछा किया, लेकिन फिरोजा के कान में तो रुई थी, उसे कुछ भी सुनाई न दिया। वो आगे बढ़ती रही। उसके पांव थक कर शल हो गए, लेकिन वो तेजी से चलती हुई चोटी पर पहुंची। जैसे ही वो चोटी पर पहुंची, सारी आवाज़ें एकदम से रुक गईं। फिरोजा की नज़र सामने पिंजरे पर पड़ी। यह पिंजरा सोने का था। फिरोजा समझ गई कि ये वही बोलती हुई चिड़िया है, बुलबुल हजार दास्तां। फिरोजा ने जल्दी से वो पिंजरा उठा लिया। मैंने तुम्हें पा लिया, अब बताओ तुम कहाँ जाओगी। यह कहकर उसने अपने कानों में से रुई निकालकर एक तरफ फेंकी। जैसे ही उसने कान से रुई निकाली, चिड़िया बोली, मेरी फिरोजा, शहजादी फिरोजा, मैं तो तुमसे ज़्यादा जानूँ। सुल्तान की बेटी, मेरी मालिक, मैं उसका हर कहना मानूँ। फिरोजा उसको देखकर इतना खुश हुई कि अपनी सारी तकलीफ भूल गई। फिर बुलबुल से बोली, ए बुलबुल हजार दास्तां, सचमुच तुम अगर मुझे अपना मालिक समझती हो तो फिर साबित करो। बुलबुल फौरन बोली, फिरोजा, शहजादी फिरोजा, जो कहना है सो कह कर देख, फिर देख मैं कैसे तेरा कहना मानूं। फिरोजा ने कहा, ए बुलबुल, जरा ये तो बताओ कि वो गाने वाला पेड़ कहाँ है। बुलबुल हजार दास्तां ने कहा, फिरोजा शहजादी, फिरोजा शहजादी, उस पार पहाड़ी के जाकर देख, एक पेड़ वहां पर सुंदर सा, जिसकी हर पत्ती, हर फूल, हर एक कली से मध्यम मध्यम गाने की आवाज़ निकलती रहती है। जब फिरोजा वहां पहुंची तो उसे बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। इतना बड़ा पेड़ कि उसके नीचे पूरी फौज आ सकती है। फिरोजा घबरा गई कि इतना बड़ा पेड़ कैसे उखाड़ कर ले जा सकती है। बुलबुल उसकी परेशानी समझ गई और बोली, शहजादी, फिरोजा शहजादी, इस पेड़ की तुम एक शाख को तोड़ो, बाग में लगकर पेड़ बनेगा, इतना घना और इतना ही ऊंचा, शाख से गोया पेड़ बनेगा। फिरोजा काफ़ी देर तक पेड़ का गाना सुनती रही। सचमुच हर एक पत्ती, हर एक कली और हर एक फूल से गाने की आवाज़ आ रही थी। फिरोजा ने उसकी एक शाख तोड़ ली और उसके बाद बुलबुल से पूछा, बी चिड़िया, अब ये तो बताओ वो सुनहरा पानी किधर है। बुलबुली हजारे दास्तां बोली, शाख को लेकर पश्चिम जाओ, चट्टानों में एक दरिया है, उसका पानी बिगले सोने जैसा, पश्चिम में जैसे सूरज डूबा, रंग है उसका गहरा पीला, एक बर्तन में उसको भर लो। फिरोजा आगे बढ़ी तो क्या देखती है कि चट्टानों के अंदर एक जगह पानी बह रहा है, जैसे बिगला हुआ सोना बह रहा हो। फिरोजा ने उसको एक बर्तन में भर लिया। ये दोनों चीज़ें लेकर फिरोजा परिंदे के पास गई और बोली, मेरी प्यारी बुलबुल, अब एक काम और है जिसके लिए मैं इतना लंबा सफ़र करके आई हूँ। बुलबुल ने कहा, फिरोजा, शहजादी फिरोजा, मेरी मालिक, जो जी में हो वो बात कहे, फिर देख कैसे कहना मानो। फिरोजा बोली, मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? मेरे भाई, वो कहाँ मिलेंगे? बुलबुल ने कहा, फिरोजा, शहजादी फिरोजा,
भाई तुम्हारे पत्थर बनकर सीढ़ी पर हैं वो बुत जैसे, उन पर ये सुनहरा पानी छिड़को, फिर बन जाएंगे वो तुम जैसे। फिरोजा ने थोड़ा सा सुनहरा पानी लिया। अब जिस काले पत्थर पर उस सुनहरे पानी के छींटे डालती, वो पत्थर से आदमी बन जाता। इस तरह वो तमाम पत्थर आदमी बनते चले गए और उसके दोनों भाई भी उन्हीं में से थे। वो दौड़कर अपनी भेड़ से लिपट गए। बाकी तमाम लोग जो अभी पत्थर बने हुए थे वो फिरोजा के सामने आए और उन्होंने झुककर बड़े अदब से सलाम किया। उनके तमाम घोड़ों में भी जान पड़ गई। अब फिरोजा आगे बढ़ी, उसके साथ दोनों भाई और उनके पीछे वो तमाम आदमी गर्ज एक काफिला बन गया। यहाँ से ये सब लोग उस पेड़ के नीचे आए जहाँ बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, लेकिन अब जो देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिरोजा हैरान रह गई। वो तो बूढ़ा बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। बुलबुल ने फिरोजा को परेशान देखकर बोली, शहजादी फिरोजा शहजादी, फर्ज का पक्का बूढ़ा बाबा, हर एक को था राह दिखाता, हर एक के था वो काम आता, मंजिल पर उसने तुमको भेजा, रुई भी दे दी भेद बताया, भेद भी ऐसा जो काम आया। फरीद ने कहा, चिड़िया सच कहती है। बूढ़े ने अपना पैगाम पहुंचा दिया कि बाहर की दुनिया तुमको उस वक्त तक नुकसान पहुंचा सकती है जब तक तुम अपना ध्यान उधर लगाते हो। तुमने उस बूढ़े से अकल और इल्म हासिल कर लिया और अब ये दोनों तुम्हें जिंदगी पर रास्ता दिखाएंगे। यही बूढ़े की जिंदगी का मकसद था और ये मकसद तुम्हारे जरिए पूरा हो गया। अब अपने रास्ते पर चलो। बुलबुल की इस बात का सबके दिल पर असर हुआ। उसके बाद यहाँ से सब लोग अपने अपने रास्ते पर चले गए। फिरोजा और उसके दोनों भाई 20 दिन के सफर के बाद अपने घर आ गए। यहाँ उसने चंबेली के पेड़ के पास बुलबुल का पिंजरा टांग दिया। बुलबुल की आवाज़ सुनते ही बाग के तमाम परिंदे उड़ते हुए आए और सब मिलकर गाना गाने लगे और बाग में ऐसी मौसीकी गूंजी जो इससे पहले किसी ने नहीं सुनी थी। उसके बाद फिरोजा बाग के फवारे के पास पहुंची। उसने अपने बर्तन से वहां सुनहरा पानी उंडेल दिया। उसका उंडेलना था कि जैसे सारा बाग एकदम से रोशन हो गया। फवारे से सुनहरे पानी के धारे फूटने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे सोने की बारिश हो रही है, जैसे 14वीं के चांद से छींटे उड़ रहे हैं। अब फिरोजा एक खुले मैदान में आई। उसने वो शाख जमीन पर गाड़ दी। एक ही लम्हे में वो शाख एक पेड़ में तब्दील हो गई, बिल्कुल वैसा ही पेड़ जैसा कि उसने पहाड़ पर देखा था। और उसकी पत्ती पत्ती, कली कली और फूल फूल से मौसीकी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे सारी दुनिया के साथ एक साथ बज रहे हों। सारे बाग में जिंदगी की लहर दौड़ गई। चंद रोज बाद फरीद और फिरोज शिकार पर जाने लगे। फिरोजा अपना वक्त बाग में गुजारती। कभी वो बुलबुल हजार दास्तां से बातें करती, कभी पेड़ का गाना सुनती और कभी फवारे के पास आकर बैठ जाती और सुनहरे पानी को टिकटिकी बांधे देखती रहती और खूब मजे लेती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब फरीद और फिरोज शिकार पर गए तो क्या देखते हैं कि उसी रास्ते पर बादशाह की सवारी आ रही है। दोनों भाई अपने घोड़े से उतर पड़े। वो बादशाह का आदाब बजा लाए। जब बादशाह की नज़र उन पर पड़ी तो जैसे उसके दिल पर बड़ा असर हुआ। वो देर तक दोनों को गौर से देखता रहा। फिर बादशाह ने उनसे पूछा, ए नौजवानों, तुम कौन हो और क्या करते हो? उन्होंने जवाब दिया, जहां पना, हम तो आपके बाग के पुराने माली के बेटे हैं। जब हमारा बाप बूढ़ा हो गया तो आपने शहर में उसके लिए मकान बनवा दिया। हमने और हमारे बाप ने वहाँ एक बाग लगाया, फिर हम लोग वहाँ रहने लगे। उसके बाद हमारा बाप मर गया। बादशाह ने कहा, अब तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा, जहाँ पना, हमारी एक छोटी बहन है, हम उसको छोड़कर नहीं जाते। बस हमारा काम यही है कि थोड़ी देर शिकार कर ले। बादशाह उन नौजवानों को देखकर बेहद खुश हुआ और बोला, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मुल्क में दो इतने खूबसूरत और नौजवान भी हैं जो इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा जी चाहता है कि तुम्हारे घर चलूं और तुम्हारा बाग देखूं। उसी वक्त बादशाह दोनों भाइयों के साथ उनके घर गया। फिरोजा तो बादशाह के आने की खबर ही से घबरा गई, इसलिए कि उसके घर में कभी इतना बड़ा मेहमान इससे पहले नहीं आया था। वो दौड़ी हुई बुलबुल के पास गई और उससे पूछा, प्यारी बुलबुल, आज हमारे घर की किस्मत चमक उठी। बादशाह सलामत हमारे घर में आए हैं, तुम बताओ कि हम किस तरह उनकी खातिर मुदारत करें। बुलबुल ने कहा, फिरोजा, शहजादी फिरोजा, इस घर के अब भाग खुले हैं। शाह तुम्हारे घर में आया, खाने में बस एक खीरा दो और खीरे के अंदर मोती भर दो। फिरोजा ये सुनकर घबरा गई। उसने सोचा कि ज़रूर बुलबुल की ज़ुबान से गलत बात निकल गई। उसने कहा, प्यारी बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? खीरे में भी कहीं मोती भरे जाते हैं? अगर बादशाह हमारे दस्तरखान पर बैठेगा तो वो क्या मोती निकलेगा? तुम्हारा मतलब चावल से तो नहीं है? बुलबुल ने कहा, फिरोजा, शहजादी फिरोजा, फिर कहती हूँ मैं, तुम ध्यान से सुन लो, खीरे में बस मोती भर दो, मोती भर दो। फिरोजा ने ऐसा ही किया क्योंकि उसको बुलबुल की अकल पर बहुत भरोसा था। इधर दोनों भाई बादशाह को लेकर बाग में पहुंचे। बुलबुल ने फिरोजा से पहले ही कह दिया था
कि जब बादशाह आए तुम अपने चेहरे पर निकाब डाल लेना। चुनांचे वो निकाब डाले हुए बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई और बड़े अदब से सलाम किया। बादशाह पर तो जैसे कोई जादू हो गया। फिरोजा को देखकर ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ख्याल आया उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, जो आदमी अच्छे बच्चे छोड़ता है वो कभी नहीं मरता, उसके बच्चे उसकी याद दिलाते रहते हैं। ए खुदा, इन बच्चों के बाप को तू जन्नत में जगह दे। फिर उसने फिरोजा से कहा, हमें तुम किसी ऐसे पेड़ के नीचे ले चलो जिसकी छांव खूब घनी हो। फिरोजा जब बादशाह को लिए फवारे के पास से गुजरी तो बादशाह ठटक कर रह गया। अरे ये तो सोने की बौछार पड़ रही है, आंखों को कितना भला लग रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा फवारा नहीं देखा। अभी वो उस फवारे को देख ही रहा था कि उसके कान में गाने की आवाज़ आई, बड़ी मीठी आवाज़। दोनों भाइयों ने बादशाह से कहा, ये आवाज़ उस पेड़ से आ रही है जिसकी पत्ती पत्ती कली कली और फूल फूल से गाने की आवाज़ आती है। फिर फरीद ने बुलबुल हज़ार दास्तां की तरफ इशारा किया जो सोने के पिंजरे में बैठी थी। फिरोज ने कहा, इन तीनों को हमने कैसे हासिल किया ये एक कहानी है। जब आप आराम से बैठेंगे तो हम इसका किस्सा आपको सुनाएंगे। बादशाह ने कहा, हम उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे। चुनांचे शहजादी ने जल्दी से खाना लगाया। जब बादशाह ने कीड़ा देखा तो बड़ा खुश हुआ। जब उसने ये देखा कि उसमें मोती भरे हुए हैं तो उसकी हैरत की कोई इंतहा ना रही। उसने कहा, अरे ये कीड़े में मोती, इसमें तो चावल भरे जाते हैं, ये मोती किसने भर दिए? ये सुनकर फिरोजा इतनी परेशान हुई कि उसके हाथ से प्लेट छूटने ही वाली थी कि बुलबुल हज़ार दास्तां ने कहा, इस शहर के वाली वारिस खुसरो शाह, इससे पहले तुमने सुना था मलिका के अपने बच्चे हों कुत्ते, बिल्ली और चूहे। अगर वो सच था तो ये भी सच है, खीरे में है मोती पकते। अब बुलबुल बड़ी संजीदगी के साथ सर उठाकर बैठी और बोली, याद है तुमको एक खुसरो शाह, 20 बरस पहले तुमसे एक लड़की ये बोली थी, मेरी लड़की ऐसी हो चांद सा मुखड़ा और सोने जैसे बाल हों उसके माथे का उसके पसीना सच्चे मोती बनकर टपके, उसके होंठों की हर एक हंसी सोने चांदी की झुनकार बने, बागों की एक एक कली खिल खिल कर फूल बने। याद है तुमको एक खुसरो शाह, ऐसी हो उसकी बेटी। बादशाह ने जैसे ही ये अल्फाज सुने उसके जहन में मलका की आवाज़ गूंजने लगी और रोने लगा। अब बुलबुल ने फिरोजा से कहा, ए फिरोजा, शहजादी फिरोजा, तुम सचमुच की शहजादी हो। बाप तुम्हारे खुसरो शाह, पर्दा उठाकर उनको देखो। फिरोजा ने अपना निकाब उलट दिया। बुलबुल ने कहा, खुसरो शाह, अब देखो तुम अपनी बेटी, सोने जैसे बाल हैं उसके, माथे का उसके पसीना मोती बनकर टपकेगा और इसके होंठों की मुस्कान बागों में है फूल खिलाती। बादशाह ने अपने आंसू भरी आंखों से फिर अपने बेटों को देखा और उसको ऐसा लगा कि जैसे उनकी शक्ल में वो खुद जवान हो गया है। बुलबुल बोली, खुसरो शाह, ये दोनों बेटे तुम्हारे अपने शहजादे हैं। ये कहकर बुलबुल ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा बादशाह को सुनाया। जब बुलबुल ये किस्सा सुना रही थी तो तीनों बहन भाई हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। कभी फूल खिलते थे, कभी मोती टपकते थे। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने सबको मिला दिया। जब सब ने अपने आंसू पोंछ लिए तो बादशाह ने कहा, आओ चलो अपनी माँ से मिलो। सब के सब जल्दी महल में पहुंचे। उनकी माँ को तो गोया दूसरी जिंदगी मिल गई। वो दोनों बहनें तो जलकर कोयला हो गई, लेकिन महल में शादियाने बजने लगे कि बिछड़े हुए आपस में मिल गए। अब सब हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।